गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज से हम लोग 5th यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। 5th यूनिट का छोटा सा टॉपिक हमारा रह गया था, विच इज डॉक्स एंड हार्बर। सो आज से हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले हम देख लेते हैं इस यूनिट में हम लोग पढ़ने के वाले हैं। 5th यूनिट में कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे डॉक्स एंड हार्बर्स के बारे में, वाटर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, फिर इसका कंपैरिजन करेंगे रोड ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट से। फिर विल सी के व्हाट आर द हार्बर्स, हार्बर्स क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, हाउ टू अप्रोच, किस तरीके से उनकी एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड की जाती है, कितना साइज़ होता है, हाउ द साइट इज़ सेलेक्टेड, मीन्स हाउ व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर कीप्ड इन माइंड वाइल selecting a site for the construction of the harbor. So shape of harbor की depth, how much water depth is needed for the proper navigation of ships and other water transport vehicles. ठीक है, harbor planning देखेंगे, then we will see the features that are inbuilt in the harbor, defects, various types of defects, and in the last we will see what are the requirement for a good harbor. ठीक है, so these are the basic points which we are going to cover in this unit. ठीक, तो in this we'll see the introduction. Importance of water transport. As you know, till now we have discussed about the highways and airports. So the most flexible type of mode of transportation is the road transport, because we do not depend on other things to reach one place to another, such as जैसे suppose करो, if you want to go from one city to another city using the railways, so first you have to go to the railway station. So you are dependent on your self vehicle or other types of vehicle that will carry you from your home to the railway station. Then only you can reach from one city to another city using the train or rail transport. So every other mode of transport is dependent on the road transport. So most flexible type of जो mode of transport है वो हमारा road transport है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं. But when we talk about the water transport, you will find that it is cheaper than the other mode of transport if the transportation distance is more. Less hauling capacity is required, cheaper, and more amount, we can say large amount of goods and services can be transferred from one place to another. ठीक है, so this is the basic introduction about the water transport कि भाई water transport में हम लोग क्या देखने वाले हैं. Water transport river पे भी हो सकता है, ocean पे भी हो सकता है, that is a डिफरेंट थिंग. सो अगर हम इन कंट्री देश में बात करें, अपने देश में, इफ़ वी वांट टू सेंड गुड्स फ्रॉम वाराणसी टू से एग्जांपल हुबली, कोलकाता, सो वील फॉलो द रूट ऑफ गंगा. फॉर दैट देयर शुड बी सफिशिएंट डेप्थ ऑफ वाटर in the river for the navigation purpose, for the transportation purpose. So there are many things that we'll cover in the water transport. So there are two types of water transport, inland water transport and other is ocean water transport. Inland water transport is concerned with river or canals. Ocean water transportation is adopted for country to country trade and commerce, और वी कैन से कोस्टल एरियाज़ में जो हमारी सिटीज़ होती हैं विद इन द कंट्री, वी कैन रीच फ्रॉम वन कोस्टल सिटी टू द अनदर कोस्टल सिटी फ्रॉम द सी. ओशियन वाटर ट्रांसपोर्ट जो 75% ऑफ द टोटल इंडियन ट्रेड इज़ यूजिंग द वाटर ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज़ ओशियन वाटर ट्रांसपोर्टेशन. बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और कम लिमिटेशंस हैं. ठीक, एडवांटेज क्या है? देयर आर सम एडवांटेज ऑफ द वाटर ट्रांसपोर्टेशन. इट प्रोवाइड्स मीन्स ऑफ डिफेंस, ऑल तो नहीं कहेंगे, बट हाँ मेजर डिफेंस ऑफ मेजर डिफेंस व्हीकल्स सच एज submarines, or we can say
launch vehicles, warships that use ocean transportation. ठीक है, cheapest mode है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ. अगर वाटर ट्रांसपोर्टेशन किसी कंट्री का अच्छा है तो वहाँ की ट्रेड भी अच्छी होगी विद नाइबरिंग कंट्रीज़, और उनकी जो सिटी टू सिटी जो ट्रेड्स होंगी जो कि इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करती हैं वो भी अच्छा होगा. सो इट इज़ वेरी मच यूजफुल फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ऑल द इंडस्ट्रीज सच एज कॉमर्स इंडस्ट्रीज, गुड्स इंडस्ट्रीज, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. सो अगर ये ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है तो ओवरऑल ग्रोथ ऑफ दैट कंट्री विल बी गुड. हाई लोडिंग कैरिंग कैपेसिटी होती है, मैं आपको बता ही चुका हूँ. बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर कहीं सामान भेजना हो तो लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ शिप्स, लार्जर शिप्स, कंटेनर्स, सो इनकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है. फॉरेन गुड्स, बाहर से जो सामान आता है उनको उनके लिए भी यूज़ किया जाता है. ठीक है, सो दीज आर सम बेसिक एडवांटेजेस. चीप मोटर पावर यूज़ होती है, मैंने बताया था आपको. हॉलिंग कैपेसिटी कम होती है, ज़्यादा हॉलिंग कैपेसिटी ट्रेन में यूज़ करनी पड़ती है. ठीक है, तो दीज आर सम एडवांटेज ऑफ द वाटर ट्रांसपोर्टेशन. देयर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑल्सो. सबसे मेन चीज़ होती है स्लो होता है ऑपरेशन में, बहुत ज़्यादा टाइम खर्च होता है. ज़रूरत है वाटर डेप्थ की, सफिशिएंट वाटर डेप्थ शुड बी देयर. ठीक है, कभी कभी किसी सी स्टॉर्म में फंस के शिप्स वगैरह सिंक हो जाती हैं तो सामान की बहुत ज़्यादा लॉसेस होता है. इसके अंदर बहुत ज़्यादा खतरा होता है इस तरीके के चीज़ें होने का, टॉर्नेडोज़ में फंसने का, और बहुत सारे ऐसे डेंजरस सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं सी में व्हेन वी मूव वन प्लेस टू अनदर दैट विल कॉज द लॉस ऑफ प्रॉपर्टी. ठीक है, मोर चांसेस ऑफ अटैक बाय द अदर कंट्रीज़. जब आप किसी कंट्री के वाटर में जाते हैं विदाउट एनी लीगल परमिशन, सो आपको वहाँ पे कस्टम की जो ड्यूटी होती है उनको फॉलो करना पड़ता है. अगर आप इलीगली जा रहे हैं तो आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है. लीगली जा रहे हैं तो आपको वहाँ पे जो पायरेट्स होते हैं उनसे भी खतरा रहता है. डाकू डकैत वगैरह होते हैं ओशियंस के, उनको पायरेट्स बोलते हैं, तो उनसे भी खतरा रहता है. ठीक है, तो देयर आर मोर चांसेस ऑफ अटैक बाय अदर कंट्रीज़. ठीक है, फ्लक्चुएशन होती हैं. ठीक है, और मेन चीज़ है बेटा सफिशिएंट डेप्थ शुड बी देयर. अगर डेप्थ नहीं होगी तो दिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विल नॉट बी यूजफुल. ठीक है, तो these were some advantages and disadvantages of water transport. ठीक है, अब पढ़ते हैं हार्बर. हार्बर क्या होता है? एक शेल्टर एरिया होता है जहाँ पे शिप्स वगैरह खड़ी होती हैं. यहीं पे हम लोग शिप्स को लोडिंग करते हैं और अनलोडिंग करते हैं. बड़ी बड़ी शिप्स को कार्गोस बोलते हैं, सो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, यहीं पे वेसल्स भी बनाए जाते हैं, उनकी रिपेयर भी की जाती है, उनको लॉन्च भी किया जाता है हार्बर पे. सो हार्बर को हम लोग इस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये एक तरीके का बेसिन है टू नेविगेट वाटर, जो कि चारों तरफ से वेल प्रोटेक्टेड होता है फ्रॉम सी वेव्स. सही है, और ओशियन की वेव्स विंड से इसको प्रोटेक्ट कर देते हैं बाई क्रिएटिंग द वॉल्स. एक डेक के ऊपर होता है. ठीक है, नदी के किनारे होता है या फिर ओशियन के किनारे होता है. एस्चुरीज़ होती हैं बेटा जहाँ पे सॉल्ट वाटर और रिवर का वाटर आके मिलते हैं, उनको बोलते हैं एस्चुरीज़. रिवर एस्चुरीज़ के किनारे हो सकता है, लेक के किनारे हो सकता है. सही है, सो हार्बर है क्या? एक शेल्टर एरिया है विच इज़ यूज्ड फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ कार्गोज एंड फॉर रिपेयरिंग एंड लॉन्च ऑफ न्यू व्हीकल्स. ठीक है, सो दीज वर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द हार्बर. इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग थोड़ा सा उठा के बनाते हैं, इसको डेक बोलते हैं, और चारों तरफ से इसकी बाउंड्री कर देते हैं ताकि ये जो वेव्स एक्शन है रिवर ओशियन वगैरह का उससे बच सके, या फिर बहुत ज़्यादा हाई विंड हो, क्योंकि जैसा कि आपको पता है शी सोर्स के किनारे जो विंड वेलोसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. तो टू प्रोटेक्ट फ्रॉम विंड वेलोसिटी एंड फ्रॉम वेव एक्शन these should be protected. ठीक है, these were some important point about the harbors. In the next class we will see some other points regarding the water transportation. Thank you.